टॉपिक है। सो हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि हम ये काम करते हैं, उसमें से कुछ काम आपको अच्छा लग जाए समझ लेना, जो काम हमारा कि आपको अच्छा ना लगे वो आप बस करना, सिंपल सी बात। इस तरीके नाउ टॉकिंग अबाउट ई-वेस्ट पार्ट, आज ई-वेस्ट की बात करना क्यों जरूरी है आप लेके Why we are talking about e-waste? Why we should be talking about e-waste or not? अगर e-waste के बारे में बात करेंगे टाइम वेस्टेज है कि मतलब है कुछ काम था हमारे, कुछ काम का है। So why? पहले हम उसमें सहमति बना लेते हैं, फिर हम e-waste के बारे में बात करते हैं। पहले ज़रा सहमति बना लेते हैं कि e-waste के बारे में बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कौन बताए? हाँ जी। With the global increase in technological use, like every street now, like earlier we used to study that there used to be questions that in which field is IT being promoted, but now I think the question arises is that in which field is IT not being incorporated. So with global increase in the technological use, I feel it is a new trend, a new problem that needs to be solved right now. But that we are talking about the use of the IT, right? If it is very useful, then we should be using it. Then it is not waste. We are talking about the e-waste. What is e-waste and why we should be talking about it? So think of e-waste as electronic waste, like simple, like जैसे हमारे पुराने फोन होते हैं, right? So after some time we dispose them off. So we do not use How it do you anymore. dispose of phone? Exactly. How do you dispose of phone? That is the bigger issue because that But you said that we dispose it off. we dispose it off like giving it to Rati and all. So and then they burn it, but that will increase the pollution. Just so that they could revive some other like elements like gold and all. But to be fair, it does kind of increase our pollution. But Your good it name is? Your good name is? Rizak. Find that. Rizak has told us several dimensions. Several dimensions. One is e-waste is getting produced automatically. Automatically means that we are using something, now it is out of date, waste is missing. It's a constantly changing technology is actually giving us the this opportunity to produce more of that. One thing, हम इसको रोक नहीं सकते हैं because we are using it. Second, हम इसको dispose of करते हैं, हमें इसको dispose of करना ही पड़ता है. Now there are multiple ways to dispose the e-waste. One of the ways to dispose the e-waste is to give it to the junk vendor. When we give it to the junk vendor, they have certain unethical practices or not so good practices by which they extract the metal or other useful material from the phone, that may be by the action of burning of the phone. Another part? Now, other thing is that it is my will to give the phone to the junk vendor, or I could give the same phone to somebody else also for this. So the other part that she has pointed out, it is not only the e-waste is not only the problem is our attitude also. It is more of a behavioral issue also. So when we talk about the e-waste, we will be talking about that how to tackle the e-waste, but we also have to tackle how to tackle the behavioral issues. So this is what she has pointed out. Yes. the same thing. You are about to cover the same point, right? Anything else about it? So either we can give the e-waste to the companies like Apple, or we can give it to Amazon, and we can exchange and buy a new phone instead of it. And those companies, they either use the e-waste to make a new phone, or they either extract the materials and then they use it in some other ways. Your good name is? Palak has given us another dimension to cameras. You might have seen about these days कि 10 साल पुरानी कारें बंद होती, 15 साल पुरानी कारें बंद होती. क्या करता हूँ कारों का? कबाड़ बना लेते हैं. जब हम फोन दे सकते हैं, हमको रिफर्बिश करके आ सकता है, तो कारें को भी रिफर्बिश करके आ सकते हैं. अब और डायमेंशन की तरफ जा रहे हैं, और तरह का वेस्ट. अब मैंने कारें की बात की, आजकल इलेक्ट्रिकल कार्स भी तो आ रहे हैं. Those also would be contributing towards the e-waste. तो हमें थोड़ा सा जो ई-वेस्ट की बात हो रही है उसको बड़े लेवल पे समझना पड़ेगा. जब तक मैं अपने घर से एक सेल्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे लगता है ई-वेस्ट कुछ भी नहीं, मैं इसको डस्टबिन में डाल सकता हूँ. The movement in context of India, you think the 150 crore people are there, 150 crore cells, then you think प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी.
फिर आपको सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आपको लगेगा कि मैं जंक वेंडर को चीज़ दे सकता हूँ, ये मैंने उठाया जंक वेंडर को दे दिया, जब आप ये सोचोगे तो प्रॉब्लम होगी। जब आप ये सोचोगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ से पानी के जहाज़ों में पूरा भर के ई वेस्ट हमारे यहाँ कंट्री में आ रहा है, जिसको जंक वेंडर खरीद के उसके अंदर से एक्सट्रैक्शन करें, देन यू विल फाइंड प्रॉब्लम इज। जब आपको लगेगा कि वहाँ से जंक वेंडर तक पहुँचाने का खर्चा इतना पड़ रहा है कि वो जंक वेंडर तक फोन पहुँचाते नहीं है, व्हाट दे डू, शिप में लादा समंदर में डंप कर दिया, देन यू विल थिंक प्रॉब्लम इज। तो ई वेस्ट को समझने से पहले ई वेस्ट की प्रॉब्लम को समझना चाहिए। जब आपके पास कंप्यूटर शुरू में आए तो बड़े वाला डब्बा आया था ना, CRT मॉनिटर्स आए थे, बट वेयर आर दोस, करोड़ों मॉनिटर थे ना वो उस समय दुनिया में, आज कहाँ है? Some of those monitors would be in the sea, many of those would be under the landfill sites, many of are already burned to produce the greenhouse gases in the, then you will think that EVS problem is, when you understand the problem, then you seek the solution and then you find the solution. When you do not understand the problem, do not seek the solution, then you seek easy solutions. मैं जंक वेंडर को क्या बात करूँ, ये आया मेरे को नया आईफोन चाहिए, हाँ जी पुराना नहीं है मेरे को तो नया चाहिए, मैंने नया चाहिए, मेरे को नया फ़ोन चाहिए, उसके पास नया है मैंने नया फ़ोन लिया, क्यों? बिकॉज हम प्रॉब्लम नहीं समझते। जब आपने प्रॉब्लम समझ ली देन यू विल फाइंड दैट मैंने एक बार फ़ोन ले लिया, मेरा 10-15 साल 20 साल आराम से निकाल सकता है, आई विल नॉट बाय द न्यू फ़ोन, राइट? सो I tell you that we live by example. As I said that I shall show you my phone. This is my phone. The whole screen is broken since years now. जब मैंने लिया तब से broken ही है screen is. I did not get it replaced. It is still working to me. मतलब मैंने ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो, और जितनी भी चीज़ मेरे से कुछ ऐसी प्रोड्यूस हो मैं उसको किसी ना किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाकर रिपेयर करा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर से आज तक एक भी जो प्रेस करने वाली मशीन है कहीं जंक वेंडर के पास नहीं, सारी मशीनें रिप्लेस भी करी, उसको रिपेयर करवा के किसी को मैंने दिया। यस प्लीज Sir, just like you said कि अगर ये चीज़ खराब होगी so we go to the electrician. Sir, but अगर हम एक और perspective से अगर हम देखें कि most of the time like जैसे हमारी कार हो गया, कार it's been like let's say 10 years old now and we need to replace that car, but that part is so expensive कि we rather accept the fact that we should buy a new car. Why should we waste our money in that? And वो जो कार होगी उसका भी वेस्ट जनरेट होएगा, एंड इवन इन आवर फोन्स ऑल्सो अगर हमें बहुत बड़ा पार्ट रिप्लेस करना है उसके लिए भी मनी एंड वो सब कुछ वेस्ट जनरेट होएगा, उसको रिप्लेस करने होगी। आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए एक दिन ऐसे रीजन ने पहले भी प्रॉब्लम बताई थी, तो साइंटिस्ट ने एक सोल्यूशन निकाल लिया था, साइंटिस्ट ने नहीं रादर ट्रेडर्स ने एक सोल्यूशन निकाल लिया था। ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया था, उन्होंने टर्म बनाई बाय बैक। बाय बैक का मतलब ये होता है कि आपकी कार में या आपके फ़ोन में अगर पूरा फ़ोन ख़राब हो गया है, लेकिन मतलब एक्चुअली तो पूरा फ़ोन ख़राब नहीं होता, उसका एक हिस्सा ख़राब होता है, चाहे कार है चाहे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो एकदम से सारा ख़राब नहीं होता, उसका एक हिस्सा ख़राब होता है। अगर किसी का पूरा पीसीबी ख़राब हो जाए, पीसी मतलब उसका जो मदरबोर्ड होता है वो भी ख़राब हो जाए, तब भी उसके अंदर से उसके आईसी उसके चिपसेट्स में से ट्रांजिस्टर्स वगैरह निकाल के यूज़ हो जाते हैं। सो कंपनी व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड बाइंग द थिंग्स बैक। आपने आपकी कार जब बेचने आप लेने जाते हो नहीं तो वो कहते हैं जी आपने पुरानी कार हमें दे दो, सो व्हाट दे विल बी डूइंग विद द ओल्ड कार, वो सारा अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सारे उसके पुर्जे निकाल के उसके कहीं ना कहीं उसको ट्वीक करके नई कार में लगा देंगे और उसको बोलेंगे रीफर्बिश्ड व्हीकल। आपका मोबाइल जो है रीफर्बिश्ड मोबाइल फ़ोन्स की बहुत बड़ी मार्केट है आजकल। मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ, दूसरे तरीके से आप एक आपके पास फ़ोन था, आपका फ़ोन हो गया ख़राब या ख़राब नहीं हुआ, आपने कहा मेरे को तो नया लेना, आपने नया फ़ोन ले लिया, आपको पहले वाला फ़ोन चलता था। दूसरी तरफ एक बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा है, उसकी कैपेसिटी है वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, वकील बन सके, लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं, कहीं आपसे टकरा गया, आपने उसको एक फ़ोन दे दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हुई। डाटा आसान था, उसने डाटा चेंज कर करके वो अपना
डॉक्टर बन गया। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है ना? मेरा फ़ोन जंक वेंडर को दिया और इधर एक डॉक्टर बनाया, दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है? चॉइस इज़ वेरी इजी टू मेक। हमें क्या चूज़ करना है वो हम चूज़ तब करेंगे जब हम उस तरीके से सोचेंगे। तभी मैंने सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बताई, सबसे पहले प्रॉब्लम से कनेक्ट करवाया, फिर देन आई सेड नाउ कमिंग टू दैट पार्ट। आप कहोगे सारी बातें हवा में हैं, हम बहुत सारा कुछ पढ़ते हैं किताबों में। सर ने कहा कि हम प्रैक्टिकल काम करें। मैंने ज़िंदगी में यही सीखा। जब मैं आपकी स्टेज में यहाँ बैठा करता था, हम भी प्रैक्टिकल काम करते थे। देन वी रियलाइज, जब हम पढ़ाना हम लोगों ने शुरू किया या मेरे को आगे आगे काम करने का मौका मिला, मुझे लगा कि प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। अगर मेरी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा मैं किसी को नहीं दे पा रहा तो मेरी पढ़ाई लिखाई ज़ीरो है। मेरी बात से आपका फ़ायदा नहीं हो, आपका टाइम वेस्टेज हो गया, तो मैं चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हूँ उसका आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। मेरे से आप मिले, मेरे से चाहे 100 लोग मिले, चाहे एक बंदा मिला, 100 लोग मिला, मैंने 100 का टाइम वेस्ट किया, एब्सोल्युटली आई एम जीरो। लेकिन एक बंदा मिला, मैंने उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर दिया, आई एम सम। मेरे को भी ये समझ आया। सिमिलरली मेरे को ये समझ आया कि मुझे किसी को भी कुछ बताने से पहले खुद को समझना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ, मैं अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो दूसरा कैसे करेगा। सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग इज देयर। आई हैव बीन वेरी प्रैक्टिकल नाउ। मैंने जितना भी पढ़ा लिखा था, सर ने कहा, मैंने डेफिनेटली मैंने 5 मास्टर्स किए। मैं सालों की पढ़ाई, सालों की किताबें, अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ के ये समझा कि किताबें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन किताबों में जो कहा गया है उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं अपनी टॉफी खा के रैपर जो है उसके रैपर से मैं उसकी गुड़िया बना के उसका सजाना नहीं सीख लेता, तब तक ये स्कूल में एक तरफ आपको आर्ट की वर्कशॉप लगाई जाती है कि आप अपना पूरा वेस्ट यूज़ करो, लेकिन हम उस आर्ट की वर्कशॉप को अलग समझते हैं, उसके लिए सामान खरीद के लाते हैं। यहाँ जो उसका रॉ मटेरियल होता है उसको हम डंप करते हैं। ये एक एग्जांपल से बात करता हूँ, वो सर की एग्जांपल है। हम नॉर्मली घर में क्या करते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, क्या करते हैं, पत्तों का झाड़ू से उसको बाहर कर देते हैं और पेड़ को देने के लिए खाद खरीद के लाते हैं, करते हैं। जबकि पत्ते उसकी खाद ही चुपते, खाद को फेंक के खाद खरीद के लाते हैं। हम बहुत सारा ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान का पता क्या होता है आप लोगों को? मैं जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, आपकी एज और स्किल्स जो है वो वापस नहीं लौटते। आपकी ज़िंदगी में से 10 मिनट वेस्ट हुआ तो आपके वेस्ट हुए। तो इट इज़ बेटर दैट आप ई वेस्ट के कंसेप्ट को या वेस्ट के कंसेप्ट को पहले अच्छे तरीके से समझो कि ई वेस्ट क्या है, एंड देन थिंक अबाउट द अर्थ डे। और जो अर्थ डे के ऊपर है, मुझे लगता है कि आज की डेट में जो हमारे कॉमन सर्कल है, सबसे बढ़िया स्पीकर अर्थ डे पे कोई नहीं। अर्थ डे के ऊपर जितना सर ने काम किया है, मैंने आपको एक चीज़ बताई।